Hello everyone, welcome to Now Hai UPSC. So in this video, we are going to begin with the part 2 of MCQs of Indus Valley Civilization. In the previous part, we had completed till 24th question I think, and in this part, we are going to begin with the 25th question. Okay, once again I am repeating, don't forget for the self-analysis. Okay, let's begin with the 25th question. 25th question says, which of the following statement is are correct regarding the Indus Valley civilization? This is the first statement, second statement, third statement. The houses were built of the baked bricks. Absolutely correct. हमें पता है कि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में बेक्ड ब्रिक्स और बर्न ब्रिक्स के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा है, ठीक है. So this statement is correct. They had common granaries. Yes, they had common granaries. हमने पढ़ा है मोहनजोदड़ो में एक लार्जेस्ट ग्रेनरी हमें मिली है. हमने पढ़ा है हड़प्पा में हमें 2 रोज और 6 ग्रेनरीज मिली हैं, ठीक है. कालीबंगन में भी हमें एविडेंस मिला है कुछ ग्रेनरी का, ऑल्दो इट इज येट नॉट क्लियर कि वो ग्रेनरी है, ठीक है. तो ये एविडेंसेस हमें मिले हैं. तो एक इतनी बड़ी बड़ी जब ग्रेनरीज है तो वो कॉमन ग्रेनरीज ही होंगी सबके लिए, राइट. तो हमें एविडेंस मिले हैं कॉमन ग्रेनरी के, करेक्ट. The drains were covered. Yes, absolutely. The drains were covered. Drains जो हुआ करते थे आपके जो स्ट्रीट है उसके आइदर साइड पे हुआ करते थे, and they were covered with the bricks or with the stone slabs. ठीक है, तो ये भी करेक्ट है. So the correct answer will be 1, 2 and 3. ठीक है. Moving on to the, if you want to read this information, then I will get a side for a second so that you can pause the video and read this. Okay. Although I have covered most of the things. Question number 26. Which one of the following is not a characteristic? Once again, focus on this not. Not पे focus करना नहीं भूलना है, ठीक है. Not the characteristic feature of the Harappan settlement. Houses built of stone. हाँ, हमने देखा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में मोस्ट ऑफ द जो चीजें हैं वो बर्न्ट ब्रिक के यूज से बन रही हैं. रेयरली हमें कहीं कहीं स्टोन के बारे में देखने को मिलता है, जैसे कि हमने देखा था सुक्का गेन डोर में जो उसका फोर्टिफिकेशन हो रखा है वो स्टोन का हो रखा है, ठीक है. बट यहाँ हमें हाउसेस स्टोन से बने हुए हैं ऐसा कहीं भी नहीं देखा है. दे वर मेड अप ऑफ बर्न्ट ब्रिक. ऑल्दो लगता है हमें आंसर यहीं से मिल गया है, पर फिर भी एक बार आगे वाले हम ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है. यूज ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, करेक्ट. Urban planning, correct. Drainage system, correct. So the answer will be A. Okay. 27. Consider the following sites: कालीबंगन, लोथल, रंगपुर एंड हड़प्पा. ये चारों साइट्स हमने देखी, ठीक है. Which of the above are हड़प्पन साइट्स? हड़प्पन साइट्स कौन कौन सी है इसमें से जो गुजरात में है स्पेसिफिकली, ठीक है. So we know कालीबंगन is in Rajasthan. We know Lothal is in Gujarat, so this can be the answer. 1 second is the answer. So Kalibangan cannot be the answer. 1 cannot be the answer. Cut. We clearly know that these two are the Gujarat, are the sites in Gujarat. We already know. And इन्हीं दोनों sites में हमें किसके evidence मिले हैं? राइस के evidence मिले हैं. हड़प्पा पाकिस्तान में है, ठीक है. So the correct answer will be B. Okay. Which one of the following Indus Valley civilization site is presently in Pakistan? तो हमें पता है कि कौन कौन सी साइट पाकिस्तान में है, ठीक है. कालीबंगन इज इन गुजरात, लोथल इज इन गुजरात, अलामगीरपुर इज इन मेरठ उत्तर प्रदेश, एंड हड़प्पा इज इन पाकिस्तान. इट्स क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, राइट. चलो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन की पेस थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है. The archaeological site of Harappa is located on the bank of which river? Harappa site कौन सी river पर located है? Harappa is located on the river Ravi. Harappa is located on the river Ravi. मोहनजोदड़ो किस पर located है? मोहनजोदड़ो is located on the river Indus. मोहनजोदड़ो is located on the river Indus. कालीबंगन किस पे है? Is on the सरस्वती. कालीबंगन किस पर है? Is on the सरस्वती, that is presently known as घग्गर हाकरा canal, right? तो channel. तो ये आपको पता होना चाहिए. ये हमने अपनी वीडियोस में एंड में देखा भी है इन द पार्ट 1 ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट. सो ये आपका 30th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ द इंडस वैली हैड एन एंशिएंट डॉकयार्ड? डॉकयार्ड के लिए एक बहुत ही ज्यादा फेमस साइट है और इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस भी हम देख चुके हैं, ठीक है. लोथल है और इससे हमें ये भी एविडेंस मिलते हैं, क्लियर एविडेंसेस मिलते हैं कि मैरीटाइम वाटर ट्रेड वहां पे उस टाइम पर हो रही थी. तो इसी से हमें क्लियर एविडेंसेस मिलते हैं इस चीज के. ये किसके काम आता था? डॉकयार्ड होता क्या है? डॉक यार्ड में आपकी जो शिप्स है वो रेस्ट करती हैं एंड जो आपका कार्गो है उससे रिलेटेड वर्क भी डॉक यार्ड पर ही होता है, ठीक है. तो
दिस इज डन। हमें पता है कि इनके लिए क्या स्पेसिफिकेशंस है, मोहनजोदड़ो में हमें क्या मिला है, हड़प्पा में क्या मिला है, कालीबंगा, ये इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट साइट्स है कि हमें पता होना चाहिए कि इनमें हमें क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। The term Sindhu Ghati Savyata, it's quite an easy question, refers to which of the following civilization? It's quite an easy question, ये तो नाम ही है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सिंधु refers to the river Indus in हिंदी, ठीक है। सिंधु रेफर करती है आपकी रिवर इंडस से सिंधु। घाटी refers to वैली, घाटी का मतलब है वैली। सभ्यता इज अ सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज इंडस वैली, राइट। मेसोपोटामिया कौन से रिवर पर है? टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। इजिप्टियन सिविलाइजेशन कौन सी रिवर पर है? नाइल रिवर। एंड चाइनीज इज ऑन येलो रिवर, मार्क देम। Which one of the following site is located in the Indus Valley of the Ghaggar, अच्छा, of Ghaggar and is associated river? कौन सी इनमें से साइट जो है वो घग्गर वैली में है और कौन इस रिवर के साथ में, घग्गर रिवर के साथ में एसोसिएटेड है, ठीक है। तो हमने देखा था, obviously we have just seen in the previous questions that कालीबंगन घग्गर हाकरा रिवर पर कौन सी है, that was सरस्वती, तो उस पर हमारी कालीबंगन साइट है, ठीक है। अलाम, ये आपका पता होना चाहिए आपको, अलामगीरपुर किस पर है? हिंडौन पर है, ठीक है। हड़प्पा किस पर है? रावी पर है, ठीक है। और लोथल का एज अ होमवर्क आप मुझे बताएंगे, लोथल का एज अ होमवर्क आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। एंड लोथल इज इन गुजरात, तो रिवर भी गुजरात होगी। चलो लेट मी गिव यू वन मोर हिंट कि लोथल की जो रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है साबरमती रिवर की, वो ट्रिब्यूटरी है साबरमती रिवर की। एंड दिस इज योर वर्क नाउ, ठीक है। अगर आपको याद आ जाता है तो बी से उसका नाम स्टार्ट हो जाता है, इट्स योर हिंट, सर्च मत करना, अगर याद आ जाता है तो खुद लिखना, ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स को फिर से कंसीडर करते हैं एक बार। The cities of the Indus Valley civilization had systematically planned roads and drainage system. Very correct, ठीक है, बिल्कुल सही। हमें पता है ग्रिड पैटर्न में उनके स्ट्रीट्स थी एंड ड्रेनेज सिस्टम भी उनका बहुत सिस्टमैटिकली प्लान्ड है, राइट। हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ क्ले एंड लेड इन इंस्क्रिप्शन। क्ले का हम एक बार तो बोल भी सकते हैं, चलो टेराकोटा से मिलकर बनी होती है, और भी चीजों से हमें बनी हुई मिली है ऑल दो, ठीक है। बाकी लेग्ड इंस्क्रिप्शन तो ये तो गलत है ना, हमें तो काफी सारे इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हैं, पिक्टोग्राफिकल इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिले हैं, उनकी तो खुद की स्क्रिप्ट है जो मोस्टली हमें सील्स पर ही देखने को मिली है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस पार्ट इट इज रॉन्ग, तो वन इज करेक्ट, दैट इज ओनली वन। If you want to read this once again, I am aside, pause the video and read this. In context of the Harappan civilization, consider the following options. तो हमने ये चार ऑप्शन देख लिए। नॉट अ पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इनमें से कौन सा जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है? क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है बिकॉज इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस एमसीक्यूज ओनली हमने पहला ही क्वेश्चन ये देखा था, राइट। सो वंस अगेन पाटलिपुत्र इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। पाटलिपुत्र हम आगे पढ़ेंगे, मॉडर्न एम्पायर में पढ़ेंगे, दैट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, बहुत जरूरी प्लेस थी ऑफ द मॉरियंस, ठीक है, ऑफ द मॉरियंस। तो दिस इज द आंसर, पाटलिपुत्र। इन कॉन्टेक्स्ट टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स। ब्राउन, ये तो हमें पता है, क्या ही पूछ सकते हैं, कौन कौन से यूज किए जाते होंगे। आइटम्स वर यूज बाय द इंडस वैली पीपल, हमें पता है कॉपर यूज करा जाता था, ब्राउन यूज करा जाता था, आयरन कैन नॉट बी द आंसर, तो 3 हो ही नहीं सकता। एंड ऑल्दो इसमें 3 बोला भी नहीं है, तो द करेक्ट आंसर इज दिस ओनली, ओके। सो 1 and 2 बोथ। टिन भी यूज करा जाता था आपका साथ में, टिन और कॉपर को मिला करके अलॉय बनता था ब्रॉन्ज, ठीक है। Which of the following हड़प्पन साइट इज लोकेटेड ऑन द घग्गर हाकरा? देखो रिवर्स आपको बहुत, ये जो फैक्चुअल डिटेल है ना, ये यूजुअली या तो आप इसको जब कोई आंसर लिख रहे हो अपना मेंस में तब यूज कर सकते हो, ठीक है, या तो अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ज्यादा नहीं है, फैक्चुअल बेस्ड है, उनमें आपके बहुत यूजफुल है, ठीक है। सो घग्गर हाकरा रिवर पर इनमें से कौन सी रिवर सिस्टम है आपका? सो देखो अगेन ये आपके होमवर्क रहेंगे तीनों, कौन से हैं आपको बताना है मुझे, ठीक है। एंड दिस इज द रिवर ऑन घग्गर हाकरा, दिस इज द साइट ऑन घग्गर हाकरा, ठीक है।
सो राखीगढ़ी इज द आंसर। और राखीगढ़ी जो है लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है। इससे पहले मोहनजोदड़ो हुआ करती थी जब तक इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है। Which one of the following is not a हड़प्पन साइट? कौन सी इनमें से हड़प्पन साइट नहीं है? तो वी नो वेल, चन्हुदारो है, कोट डिजी है। चन्हुदारो कोट डिजी दोनों ही कहां पर है आपके? पाकिस्तान में है। दोनों ही कहां पर है? पाकिस्तान में है। हमने देसलपुर के बारे में भी पढ़ा है। हमने देसलपुर के बारे में पढ़ा है कि इट इज फेमस फॉर फोर्टिफिकेशन। इट इज फेमस फॉर फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन के लिए फेमस है। सील्स भी हमें यहाँ पर मिली है। ठीक है। और ये गुजरात में है। और ये गुजरात में है। तो हमने सोहागुरा के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है अभी तक नहीं पढ़ा है ना, क्योंकि ये भी हमारी जो साइड है ये किससे रिलेटेड है? मौर्यन और पोस्ट मौर्यन से रिलेटेड है। ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी सोहागुरा ओनली। यह आपका PYQ है, प्रीलिम से पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ये आपका यूपीएससी का। Which one of the following indicates the correct chronological order of the Harappan civilization? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जानने के लिए तो आपने मैप बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, या एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कौन सी साइट कहां पर लोकेटेड है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि एटलीस्ट चलो 4 साइट हमें दी हुई है, हम देख लेते हैं ये कौन कौन से स्टेट में है पहले। ठीक है। मोहनजोदड़ो ये कहाँ है आपका? पाकिस्तान में है। ठीक है। हड़प्पा भी कहाँ है आपका? पाकिस्तान में है। ठीक है। कालीबंगा आपका राजस्थान में है एंड दिस इज इन गुजरात। तो अब थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करो। अब थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन एंड गुजरात। नो देखो गुजरात, और चलो मैं आपको मैप दिखा ही देती हूँ, इसके लिए आपको मैप पता होना ही चाहिए। ठीक है। सी है मोहनजोदड़ो is here. Then comes the Harappa is here. ठीक है। कालीबंगन उससे आगे है। कालीबंगन is here and the another one is Lothal is here. तो see what? First Mohenjo-daro, right? Second is Lothal. Third is Harappa and fourth is Kalibangan. Is it correct? Is it correct? So the correct answer will be मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल एंड कालीबंगन। करेक्ट आंसर ये होगा आपका। सी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज इफ यू विल सी देन ये वाला जो है ना ऑलमोस्ट आपका हड़प्पा और लोथल इधर लाइन में पड़ रहा है, बट ऑल दो हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है और ये गुजरात के कॉर्नर पर है, तो इसमें आप कंफ्यूजन देख सकते हैं। ठीक है। तो द करेक्ट आंसर, अगर इसमें आपका लोथल पहले नहीं दिया है हड़प्पा से, तो आप इधर देख सकते हैं। यूपीएससी में आप ज्यादातर देखेंगे जो क्वेश्चन कंफ्यूजनल क्वेश्चंस होते हैं ना वो आते ही नहीं है बेसिकली। ठीक है। सो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट डे पाकिस्तान में आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है एंड कालीबंगा आपका राजस्थान में है, लोथल आपका गुजरात में है। तो ईस्ट वेस्ट सीक्वेंस में आप इनके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ठीक है। Which of the following were the characteristic of the Harappan sites? Of the Harappan sites, तो want to break large scale drainage system, इतना इजी क्वेश्चन है ये, we know very well। तीनों करेक्ट है इसके, इसमें तो हमें कुछ डिस्कशन रिक्वायर्ड ही नहीं है अभी। ठीक है। और यूपीएससी में ऑलवेज रिमेंबर जो आपको आंसर करने होते हैं ना, वो जो 4 ऑप्शन है उनको कंपैरिजन करके करने होते हैं। ठीक है। आपको उन चारों में से कंपैरिजन करना है विच इज द मोस्ट राइट आंसर, विच इज द मोस्ट राइट आंसर। मोस्ट राइट आंसर को टिक करना है बस, मेन मोटिव ये है। Which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन सी साइट आपकी जानी जाती है, दैट इज धोलावीरा। उसमें हमें स्टेप वेल्स भी मिले हैं, उसमें हमें रिजर्वॉयर्स भी मिले हैं, उसमें हमें आपके रिवर वाटर हार्वेस्टिंग के भी एविडेंसेस मिले हैं एंड विद दैट चैनलाइजिंग वाटर इनटू द कनेक्टेड रिजर्वॉयर। किस तरीके से जो आपके रिजर्वॉयर्स हैं उन तक, रिजर्वॉयर्स में कहीं से तो वाटर कलेक्ट किया जा रहा होगा ना, तो वो चैनलाइजिंग वाला सिस्टम भी आपको देखने को इधर मिला है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट धोलावीरा। Which one of the following is not a Harappan site? Oh,
वंस अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन। ये रिपीटेड इसलिए है कि ये यूपीएससी के प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर है, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर है। ये साइज देखो, प्रीलिम्स के क्वेश्चन से हम क्या सीख सकते हैं, ऑल्दो वी नो एग्जैक्टली तो रिपीट नहीं होने वाला है, एग्जैक्टली तो रिपीट नहीं होने वाला है, पर एटलीस्ट हम ये सीख सकते हैं कि हाँ ये साइट के बारे में पढ़े, इस साइट के बारे में भी पढ़े, और इस साइट के बारे में भी पढ़े, इसके बारे में भी पढ़े। ठीक है, तो ये जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप उनको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न का पता चलता है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न का पता चलता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये पता चलता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर तो हमें वैसे भी पता है, एंड दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, हमने देखा, एक ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, एंड दिस वाज आल्सो द वन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी आपका पूछा जा चुका है, यूपीएससी प्रीलिम्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, और इसको देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? दे पॉजेसेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेंपल? ऑब्वियसली नॉट, वी नो हमें कोई भी रिचुअल से रिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं मिला है, टेंपल्स हमें नहीं मिले हैं। जैसे हमें मेसोपोटामिया में देखने को मिलता है, वहां पर टेंपल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमें यहाँ पर टेंपल्स नहीं मिले हैं। ठीक है, दे वर्शिप बोथ फीमेल एंड मेल डाइटीज? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। मेल में हमने पशुपति सील का एविडेंस देखा है, फीमेल में हमने मदर गॉडेस का एग्जाम्पल देखा है, तो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो वन गलत है, देखो किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट एलिमिनेट कर देते हैं, ये दो एलिमिनेटेड है। ठीक है, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन करेक्ट। देखो अगर कभी ये दो ऑप्शन बचते हैं ना आपके पास, तो गिव प्रायोरिटी टू द ऑप्शन इंस्टेड ऑफ नन ऑफ दीज, गिव प्रायोरिटी। ठीक है, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि नन ऑफ दीज करेक्ट नहीं हो सकता है, बट मोस्ट चांसेस आर विद दिस ऑप्शन। ठीक है, तो ये कर देंगे इन केस यू डोंट नो द रेस्ट टू स्टेटमेंट्स। अगर उनको पता है, आपका उनमें से एक भी पता है, तो आप करेंगे। ठीक है, दे वर्शिप बोथ, यस ये तो करेक्ट है। सेकंड तो करेक्ट है, तो नन ऑफ दीज तो होने से रहा, अब क्लियर हो गया ना। सेकंड करेक्ट है, नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, कैंसिल कर दिया, द आंसर विल बी 2 ओनली। अब आगे का आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक। दे एम्प्लॉयड horse-drawn chariots and warfare. How can you say this? Horses का ये पता नहीं था, chariot कहाँ से हो सकते हैं उसके? chariot is रथ। ठीक है, तो horse-drawn chariot नहीं यूज करते थे वो लोग, तो ये भी गलत हो गया। So the answer will be 2 only। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिया है ये सब, उसके बाद अगर आप ये अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो आपको लग रहा होगा नहीं क्वेश्चन टिपिकल ज्यादा नहीं आते हैं। इट इज ऑल अबाउट आवर अंडरस्टैंडिंग, ऑल अबाउट आवर कंसेप्ट, हमने कितने अच्छे से वो पढ़े हुए हैं बस। ठीक है, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई थिंक। ठीक है, so the first statement is this, second statement is this, read the statements very carefully. It was predominantly a secular civilization। हाँ, इतना तो हम कह सकते हैं, आगे का पढ़ेंगे, इतना तो हम कह सकते हैं कि secular civilization थी, बिल्कुल थी। ठीक है, and the religious elements though present did not dominate the scene। तो religious elements जो हैं हमें मिले हैं, रिलीजियस एलिमेंट्स जो हैं हमें कुछ मिले हैं, हमें पशुपति सील मिली है, मदर गॉडेस का एग्जांपल मिला है, हमें पता चलता है कि देवर एनिमिज्म। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें मिली हैं। ठीक है, बट उन्होंने डोमिनेट नहीं किया है ना पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन को। जिस तरीके से हमने टेम्पल्स का डोमिनेशन मेसोपोटामिया में देखा है, उस तरीके से हमने हड़प्पा में तो नहीं देखा है। ठीक है, तो दे डिड नॉट डोमिनेट द सीन। तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, राइट। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, और नाइदर नहीं हो सकता एटलीस्ट, नाइदर नहीं हो सकता एटलीस्ट। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। तो इस टाइम पर हमें टेक्सटाइल के एविडेंसेस मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। हमें ये भी पता है कि कॉटन ग्रो की जाती थी, कॉटन ग्रो की जाती थी, एंड इवन हड़प्पन पीपल वॉज द अर्लीस्ट पीपल्स टू ग्रो कॉटन, राइट, इसलिए उनको सिंडॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट यहाँ तक। अब हमें मैन्युफैक्चरिंग के भी एग्जाम्पल मिले हैं टेक्सटाइल के,
ठीक है। अब जब कॉटन ग्रो की जाती थी, मैन्युफैक्चरिंग के एविडेंसेस मिले हैं, तो ऑब्वियसली कॉटन से भी क्लॉथ बनाए जा रहे होंगे, हमें स्पिंडल्स मिले हैं, वुवन क्लॉथ के एविडेंसेस मिले हैं, तो ये दिस स्टेटमेंट इज टू करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोथ 1 एंड 2। ठीक है, बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये थोड़ी सी मैंने इंफॉर्मेशन आपके लिए इधर दी हुई है, इन केस इफ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस 2 पार्ट्स ऑफ द एक्सप्लेनेशन, तो आप एक बार थोड़ा इसको देख लेना। ठीक है, इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या है दिया है इधर? मैंने आपको हरप्पन साइट्स दी है, कुछ उनकी रिवर दी है, रिवर इंपॉर्टेंट रहता है, उनकी की फाइंडिंग्स क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो टाइम कितना हो गया? ठीक है, तो आपको पता है कि हड़प्पा कहाँ है? पंजाब। अच्छा, पंजाब आपको पता है ना, पाकिस्तान में भी पंजाब है और इंडिया में भी पंजाब है, तो ये कौन से पंजाब में है? पाकिस्तान वाले पंजाब में है। ठीक है, बी वेरी क्लियर विद इट। ठीक है, रिवर कौन सी है? रावी रिवर है। की फाइंडिंग्स क्या है? ग्रीनरी, सिमेट्री, स्टोन सिंबल्स, ये सिमेट्री के कुछ नेम गिवन है। ठीक है, ऐसे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, ये सिमेट्री के अलग अलग जहाँ पे फाइंडिंग्स हुई है, फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग ये आपके सिमेट्री के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, ग्रीनरी, सिमेट्री, स्टोन सिंबल्स, टेराकोटा फिगराइन, सील्स, ज्वेलरीज ये आपके मिले हैं। ठीक है, तो ये अर्लीस्ट साइट है एंड द लार्जेस्ट साइट, वन ऑफ द लार्जेस्ट कह सकते हैं, बट इट इज नॉट द लार्जेस्ट साइट। वन ऑफ द लार्जेस्ट कह सकते हैं, बट इट इज नॉट द लार्जेस्ट साइट। ठीक है, नेम सेक ऑफ द सिविलाइजेशन, एविडेंस ऑफ द अर्बन प्लानिंग, तो इसी की वजह से इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा है। एंड एविडेंस इधर हमें मिले हैं कि अर्बन प्लानिंग हुआ करती थी उस टाइम पर। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंध में है, याद रखना, पाकिस्तान। ठीक है, रिवर कौन सी है इसकी? इंडस पर ही है ये। क्या क्या मिला है हमें? ग्रेट बाथ, ग्रीनरी, ब्राउन डांसिंग गर्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रेट बाथ कहाँ मिली है, लार्जेस्ट ग्रीनरी कहाँ मिली है, स्पेशली डांसिंग गर्ल कहाँ मिली है, पशुपति सील एंड बियर्डेड पीस्ट कहाँ मिला है आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू लर्न नाम, ये मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? एडवांस प्लानिंग के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए जानी जाती है, और कालीबंगन सॉरी राखीगढ़ी जब तक हमें डिस्कवर नहीं कर पाए थे तब तक ये ही सबसे बड़ी साइट थी। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ करती थी। ठीक है, हुआ करती थी, सो करेक्ट दिस। अभी क्या है? राखीगढ़ी है। ठीक है, धोलावीरा गुजरात, नियर रिवर लूनी, लूनी रिवर के पास में है। ठीक है, की फाइंडिंग्स क्या है? इधर आपको वाटर रिजर्वॉयर मिलता है, स्टेप वेल्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इंडस स्क्रिप्ट का साइन बोर्ड मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पर स्पेशली क्यों लिखा है? क्या और कहीं जगह स्क्रिप्ट नहीं मिली है? सील्स पर हमें स्क्रिप्ट मिली है, लेकिन एक साइन बोर्ड पर हमें स्क्रिप्ट यहाँ पर मिली है, और ये जो है लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट हमें मिली है। यूजुअली क्या है, हड़प्पन पीपल जो होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे स्क्रिप्ट लिखा करते थे, बहुत लंबी लंबी लाइनें उनकी नहीं मिलती है, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट हमें मिली है ना, वो यहीं पर मिली है। ठीक है, बार्ली के एविडेंस मिले हैं, सिटाडेल के एविडेंस मिले हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, अ यूनिक लेआउट ऑफ द सिटी डिवीजन आपको मिला है। हमें पता है धोला और कालीबंगा में हमें यूनिक लेआउट मिला है, जिसमें हमें मिडिल टाउन में मिला है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर? सिग्निफिकेंस ये है कि वाटर कनेक्शन टेक्निक्स यहाँ पे हमें अच्छी खासी मिली है। ठीक है, और यूज ऑफ स्टोन इन द सिटी कंस्ट्रक्शन, तो ये एक ऐसी साइट है जहां पर हमें स्टोन से कंस्ट्रक्शन देखने को मिला है। ठीक है, हमें स्टोन, मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टोन से कंस्ट्रक्शन हमें कहीं कहीं देखने को मिला है। डोमिनेटिंग क्या है? बर्न्ट ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे सुतकांग इंडोर में आपको फोर्टिफिकेशन स्टोन का मिलता है, इधर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो भी स्टोन के मिलते हैं। यूनिक प्लानिंग विद ओपन स्पेसेस। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। Moving on to the Rakhigiri. Rakhigiri is one of the largest site of the Indus Valley civilization. ठीक है, लार्जेस्ट साइट है एंड घग्गर हाकरा रिवर पर लोकेटेड है। इससे रिलेटेड तो हमने क्वेश्चंस भी देखे हैं कि फाइंडिंग्स क्या है यहाँ पर, तो हमें सेटलमेंट के एविडेंसेस मिलते हैं, spread across several mounds, ज्वेलरी, टेराकोटा फिगर्स एंड शेल बैंगल्स आपको मिलते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया है ये। ठीक है, एविडेंस ऑफ कंटिन्यूअस सेटलमेंट इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग दी हड़प्पन, तो ये हमें पता है कि हमें अभी 2024 में ही एक्सकवेट की, 2014 में ही हमने ये एक्सकवेट की है, तो अभी हमें इससे और एविडेंसेस मिल रहे हैं। लोथल जो है हमारा गुजरात में है, इंडिया में। ठीक है, और भोगवा रिवर के पास में है। यू गॉट द आंसर ऑफ योर होमवर्क, राइट। ठीक है, नियर द गल्फ ऑफ खम्बत।
की फाइंडिंग्स क्या है इसकी? डॉकयार्ड है, बीड मेकिंग फैक्ट्री है, सील्स, वेट, वेयर हाउसेस, टेराकोटा फिगराइंस मिले हैं, ठीक है। देन कम द सिग्निफिकेंस, फर्स्ट एवर डॉकयार्ड है, ये आपको मैंने बताया, ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है, एविडेंस ऑफ मैरीटाइम ट्रेड यहाँ से मिलता है हमको, एडवांस व्हील्ड एंड सेल ऑर्नामेंट इंडस्ट्री, सेल्स जो है आपको पता है वाटर बॉडी के पास में ही ज्यादा मिलते हैं, तो यहाँ से ज्यादातर सेल्स आपको मिला करते थे, ठीक है। कालीबंगन राजस्थान में है आपका, घग्गर हाकरा रिवर अगेन, की फाइंडिंग्स क्या है? फायर एहसास मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि फायर की वर्शिप की जाती होगी, एविडेंसेस ऑफ द प्लॉट फील्ड हमें मिलते हैं, ठीक है, प्लॉट फील्ड हमें मिलते हैं, स्पेलिंग गलत है, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म आपको इधर मिलता है, ठीक है, पेंटेड, कालीबंगन इज वन अगेन वन ऑफ द साइट जहां पे हमें 3 आपके प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, ठीक है, पेंटेड पॉटरी आपको मिलती है, बोन्स ऑफ द कैमल आपको यहाँ मिलती है, ठीक है, बोन्स ऑफ द एनिमल डोमेस्टिकेटेड, उसमें से आपको यहाँ पे कैमल की एविडेंस भी मिलता है, ठीक है। चलो, देन कम्स द बनावली, बनावली जो है आपका हरियाणा इंडिया में है, ठीक है, हमें पता है, रिवर जो है अगेन घग्गर हाकरा रिवर है, फाइंडिंग्स क्या है यहाँ पे? तो क्या है ये बनावली में हमें बार्ली कल्टीवेशन, लैपिस lazuli, बैंगल्स एंड पेंटेड पॉटरी। अगर आपने पहले वाली वीडियोस देख रखी है तो आपको सब कुछ रिलेटेबल लग रहा होगा, सब कुछ रिलेटेबल लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा और चीजें याद भी हो रही होंगी, राइट। एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन फेज आपको यहाँ पर मिलता है, तो ये प्री हड़प्पन साइड भी रही है और हड़प्पन साइड भी रही है, ठीक है। चन्हुदारो इंडस रिवर पर है, बीड मेकिंग फैक्ट्रीज के लिए, सील टेराकोटा फिगराइंस ब्राउन फिगर्स के लिए फेमस है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ओनली हड़प्पन साइट विदाउट अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट, ये एक इकलौती ऐसी साइट है जहां पे हमें कोई सिटाडल का भी एविडेंस नहीं मिलता है, जहां पे हमें कोई सिटाडल का एविडेंस नहीं मिलता है, ओनली हड़प्पन साइट विदाउट फोर्टिफिकेशन, एक इकलौती हड़प्पन साइट है जहां पे आपको फोर्टिफिकेशन का एविडेंस नहीं मिलता है, known for its industries and craft activities, right? तो तुक्कागेन डोर जो है वो आपका ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मिलता है, एंड इट इज दी वेस्टर्न मोस्ट साइट, इट इज दी वेस्टर्न मोस्ट साइट, ठीक है। फोर्टिफिकेशन टेराकोटा फिगराइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ये डस्ट रिवर पर लोकेटेड है, ठीक है। और सिग्निफिकेंस क्या है? वेस्टर्न मोस्ट हड़प्पन आउटपोस्ट है ये, पॉसिबली इन्वॉल्व इन ट्रेड विद मेसोपोटामिया, ठीक है, पोर्ट टाउन हुआ करता था ये उस टाइम पर, यहाँ की जो कंडीशंस हैं वो बेटर फॉर लिविंग नहीं है, ठीक है। कोट डिजी, तो यू कैन रीड दिस, इंडस वैली कोट डिजी सिंध पाकिस्तान में है, पॉटरी, फोर्टिफिकेशन, टूल, एविडेंसेस एंड दीज ऑल, ठीक है। ये भी आपकी प्री हड़प्पन और हड़प्पन फेज से है, और लार्ज स्केल फोर्टिफिकेशन यहाँ देखने को मिला है। सुरकोटड़ा नियर रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, यहाँ पे आपको हॉर्स रिमेन्स मिलते हैं, फोर्टिफिकेशन, बीट, बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ठीक है। देन कम्स बालाकोट, बालाकोट आपका बलूचिस्तान में है, एंड कोस्टल एरिया नियर द अरेबियन सी के पास में है ये। की फाइंडिंग्स जो है सेल वर्कशॉप बीड आपको इधर मिलते हैं, ठीक है। देखो कोस्टल एरिया के पास में है तो सेल से रिलेटेड हो सकता है, इजीली आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। कम्स रंगपुर, रंगपुर के बारे में हमने पढ़ा है, नियर द सौराष्ट्र रीजन है, सौराष्ट्र रीजन में हमने ये भी देखा था कि सौराष्ट्र रीजन में हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि शायद यहाँ पे एंगल मेजर किया जाता होगा इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, ठीक है। की फाइंडिंग्स क्या है? राइस कल्टीवेशन, हड़प्पन पॉटरी, बैंगल्स, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? लेट हड़प्पन फेज का भी एविडेंस हमें यहाँ से मिलता है। आमरी जो है आपका सिंध पाकिस्तान में है, नियर इंडस रिवर, फाइंडिंग्स क्या है? प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन फेज दोनों की आपको पॉटरी और टेराकोटा फिगराइंस उधर मिलती हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बोथ दीज। कोटबाला जो है आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है, नियर द कोस्ट ऑफ व्हाट? अरेबियन सी, ठीक है। तो की फाइंडिंग्स क्या है? पॉटरी, एविडेंसेस ऑफ द ट्रेड लिंक्स विद द अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला इज व्हाट? अरेबियन पेनिनसुला में आपका बहरीन ओमान के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये की फाइंडिंग्स आपको इनसे रिलेट करना बताती है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? कोस्टल ट्रेडिंग आउटपोस्ट, एविडेंस ऑफ द कॉन्टेक्ट विद वेस्टर्न एशिया, ठीक है। अलामगीरपुर जो है आपका ईस्टर्न मोस्ट साइट है, ठीक है, और पॉटरी, बीड्स एंड टेराकोटा फिगराइंस मिलती है, हिंडौन रिवर पर है, ठीक है। एविडेंस ऑफ हड़प्पन स्प्रेड इनटू द अपर गंगा यमुना द्वाब में है, ऑल्दो हमने काफी सारे क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जहां पे ये बोला गया था इट इज स्प्रेडेड इन दिस, पर ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही बहुत है, बस एक ये आपका सबसे ज्यादा ईस्टर्न मोस्ट है इसलिए ये है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। एंड दाइमाबाद जो आपका महाराष्ट्र इंडिया में है, ठीक है, दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र इंडिया में है, जो आपका साउदर्न मोस्ट साइट है हड़प्पा की, ठीक है। ब्राउन फिगराइंस ऑफ द चैरियट्स इधर आपको मिले हैं, ठीक है। ऑक्सन और एलिफेंट आपको एविडेंसेस इनके आपको यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं।
और गनवेरी वाला ये आपको काफी जगह देखने को मिल जाएगा, ये घगर हाकरा रिवर पर है, ठीक है। कंपैरेबल इन साइज टू हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो बट रिमेन्स अंडर एक्सकवेटेड। साइज में तो ये लगभग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बराबर निकलती है, पर इसका एक्सकवेशन ज्यादा नहीं हुआ है, अनएक्सकवेटेड रही है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, वन ऑफ द लार्जेस्ट 5 हड़प्पन साइट्स, इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द सेटलमेंट पैटर्न, ठीक है। और ये आपका है कुंतसी, ये आपका गुजरात में है, ठीक है, नियर द मलुच्छी रिवर, मलुच्छी रिवर के पास में है। और की फाइंडिंग्स आर अगेन द सेम ओनली, ठीक है। नोन फॉर द कोस्टल ट्रेड एंड क्राफ्ट एक्टिविटी। रोजडी जो है आपका गुजरात इंडिया में है, ठीक है, नियर द रिवर सौराष्ट्र, नियर द सौराष्ट्र रीजन, ठीक है। तो ये रीजन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। की फाइंडिंग्स क्या है, पॉटरी, सेल, बीस, टेराकोटा फिगराइंस। और सिग्निफिकेंस क्या है इसका, अ लेट हड़प्पन साइट इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांजिशन टू द पोस्ट हड़प्पा। तो ये काफी सारी साइट्स में आपको प्री हड़प्पा, हड़प्पा और किसी काफी सारी साइट्स में आपने लेट हड़प्पा और हड़प्पा के बारे में पढ़ा है, तो रिमेंबर दिस फेज, है ना। Coming to the Sonauli, Sonauli is in Uttar Pradesh, ठीक है, near the Yamuna river. Find key findings, burials with the chariots, burials with the chariots, copper objects and war gears. तो ये थोड़ा सा हमें डिफरेंट देखने को मिला है, तो you can remember this, ठीक है। A late Harappan burial linked with the early Vedic culture हमें यहाँ पे देखने को मिला है। मांडा जो है नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, स्टोन टूल्स, पॉटरी, टेराकोटा मिलता है, चेनाब रिवर पर लोकेटेड है, ठीक है। सो फाइनली वी आर इन द एंड, ठीक है। लेट मी टेल यू वन थिंग, हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने देखा था कि ये नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन में है, ये हमने देखा था नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन में है। तो इसको हम एक तरीके से थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं, इसको हम डाउट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा सेंट्रल एरिया में भी आ जाता है, थोड़ा सा सेंट्रल एरिया में भी आ जाता है, ठीक है। सेंट्रल एरिया के साथ साथ में ये आपका साउथ तक भी फैला हुआ है, ये आपका साउथ तक भी फैला हुआ है, महाराष्ट्र तक, ठीक है। ऑल्दो उसमें ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट कोई भी नहीं है, ऑल्दो उसमें ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट कोई भी नहीं है, तो वो क्वेश्चन ही एक डाउटेड क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन ही एक डाउटेड क्वेश्चन है। तो उसमें से जो मोस्ट करेक्ट आंसर हमको लगेगा हम उसे कर सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर डी मोस्ट करेक्ट आंसर लग रहा है तो हम उसका डी भी करेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको कुछ स्पेसिफिक साइट मेंशन की गई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कंप्लीटली आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ में आ गया होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन से, देन उसके क्वेश्चन से, देन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपने किया है, आप एकदम रेडी हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उसे करने के लिए, ठीक है। आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू एंड इफ यू लाइक द वीडियो अ बिट सो प्लीज डू लाइक, और अच्छा अच्छा कंटेंट अगर इस तरीके का चाहिए तो सब्सक्राइब करो सो दैट यू कैन रीच मी इजीली, ठीक है। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।